Hello all, my name is Akshay Verma and today I will discuss the role of communication in conflict resolution, which is a crucial part of alternative dispute resolution. Before I start, I would like to thank Professor Dr. V.K. Ahuja sir for giving me this opportunity to share my ideas and knowledge on this topic. When we talk about alternative dispute resolution, it is a way of resolving the dispute amicably and alternatively. That is one more mechanism, and there are various forums right under alternative dispute resolution. In short, it is called ADR, where the parties can resolve their trivial issues without going to the court. So we'll talk about those dispute mechanisms also. That is mediation, negotiation, arbitration, conciliation, and other forums. Now, this whole presentation is divided into 7 parts. The first one is learning objectives. Second one being learning outcomes. Third one, problem, dispute, conflict. Then communication, perception, and reality in communication. We have few class exercises, and finally, conclusion. When we talk about objectives, the main objective is to have an understanding about the basics of communication, their use in conflict resolution processes, the difference between conflict and dispute, and the role of perception in dispute resolution mechanism and in communication, and have a proper understanding of various barriers of communication. And finally, to enable the audience identify the body language model which the disputant, other disputant has. The outcomes will be the audience at the end of this presentation would be able to differentiate between conflict and dispute and understand the basic concepts of communication. They will be able to realize the importance of perception in communication and the resolution of disputes. They will be able to have them to know the importance and will be able to cultivate the art of effective communication, why it is important, how it has to be done. And finally, the audience will be able to have a non-discriminatory approach. That means they will be able to treat everyone equally, because every person is having a different communication style, different body language model. But sometimes we feel that what we are feeling, the same is the other person feeling. But that is not true. So the first part, that is problem, dispute, and conflict. When we talk about problem, dispute, and conflict, when we say what is problem, मैं आज सुबह टाइम से नहीं उठा, क्लास लेट पहुंचता हूं, it is a problem. Bus time से नहीं आई, school bus, it is a problem. So there may be many problems, and the reason for this problem is the differences between the individuals. It may be difference of opinion, difference of personality, difference in culture, difference in religion, difference of area. So there may be many differences, and if these differences are not resolved, अगर इन differences पे आप काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा दो parties के बीच में? There will be a disagreement, and this disagreement, if it is not resolved, it leads to problem. And this problem, जब एक के ऊपर दूसरा problem जाता रहता है, pile up होते रहते हैं, so we finally get the dispute. Now, when we talk about dispute and conflict, dispute is that stage where a conflict can be resolved. आप पढ़ते हैं alternative dispute resolution. That means what we resolve is a dispute, not the conflict. But yes, sometimes an unresolved dispute may turn into conflict. Sometimes a conflict is at that stage जहां आप उसे solve नहीं कर सकते हैं. तो अगर कोई conflict ऐसी stage में है जहां आप उसे resolve नहीं कर सकते हैं, that is called conflict. अगर वो dispute resolve हो सकता है, अगर वो conflict resolve हो सकता है, तो हम उसे बोलते हैं dispute. So that stage, so attaining that stage is, or the visibility of the disagreement is dispute. But जैसे ही वो आपके control से बाहर चले जाता है, that is called conflict. Now, if I ask you define elephant, everyone will have different opinion, different definition that what is elephant.
or who is elephant. It may be an animal. Some may say it is a large animal. Some will say huge animal, great animal, good animal. It has 4 legs. It has tusk. It is a mammal. So there are various definitions to a single word elephant. But if I show you this picture, you all will be able to find that this is an elephant. So same goes with a dispute. You may not able to define a dispute, but you know that yes, dispute has happened. एक विवाद हो चुका है. अब वो जो विवाद है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे रिजॉल्व करना है, this is called ADR, that is alternative dispute resolution. And this dispute, they are inevitable as death and taxes. वो हो नहीं है, आप रोक नहीं सकते. आप क्या कर सकते हैं, वो ये है कि आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं. Now, when you talk about conflict क्या होता है? For example, if it is you're having a coconut, a coconut with you, अगर आप उसको नारियल को तोड़ना जानते हैं, so you will get fresh water out of it. But if you do not know how to break it, तो आपके लिए वो एक coconut एक hard object है और कुछ नहीं. So this is conflict, the definition of conflict, and the interlink between conflict and dispute. So if you know how to break that conflict into dispute, अगर आप उसको dispute के स्टेज में पहुंचा सकते हैं जहां उसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वो dispute बन जाता है. अगर आप उसे रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं तो वो हमेशा के लिए कॉन्फ्लिक्ट रहेगा. उसके बाद आपके काफी डिफरेंसेस कभी सॉल्व नहीं हो सकते. So now there are various types of conflict. There may be interpersonal conflict. I may have different opinion, the other person may have different opinion. हो गया interpersonal conflict. दो पार्टीज के बीच में सेम ओपिनियन नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया. Now latent conflict. In latent conflict, for example, there are 2 friends, Nakul and Arjun. And Nakul wants to go to a South Indian restaurant, whereas Arjun wants to eat North Indian food. अब इन दोनों के choices अलग हैं, लेकिन किसी को भी किसी की choice के बारे में नहीं पता है. And there is a disagreement now. They have ended up reaching a restaurant or entering a restaurant which is Chinese restaurant. तो अब यहाँ पे because they were not aware of their choices, तो ये वहां चले गए. This is called latent conflict, when the cause of conflict is unknown. Then we have partially latent conflict. For example, Nakul knew that Arjun wants to eat South Indian, but Arjun do not know about the choice of Nakul. उस केस में क्या है, एक को पता है, एक को नहीं पता है, and there is a disagreement. This is called partially latent conflict. Then we have active conflict. Active conflict में क्या होता है, both the parties, whether it is Nakul or Arjun, they both know that yes, the choice of this person is eating South Indian food and the other's choice is North Indian food. This is called active conflict. और फिर भी disagreement हो रहा है. Then we have displaced conflict. Now, for example, there is a newly married couple. उनको ये देखना है कि कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट किया जाए अपनी सेविंग्स को, लेकिन वो लड़ाई इस बात पे लड़ रहे हैं कि उनकी जो बेडरूम है उसकी वॉल्स में कौन सा पेंट किया जाए. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, when the participants fail to perceive their real goals or real dispute. Then we have misattributed conflict. Now, in this misattributed conflict, क्या होता है, as the name suggests, is basically a part of displaced conflict. Now, for example, there is a company, वहां पे एक employer है, एक boss है, एक उसका दो उसके employees हैं. Now, there is one senior employee, the second is junior employee. So whenever there is a tussle between a senior employee and boss, तो वो जो senior employee है वो सारा गुस्सा अपने junior employee पे निकालता है. This is called misattributed conflict. Then we have false conflict or unrealistic conflict. यहाँ पे मुद्दा है नहीं. For example, there is a friend of Yudhishthir. सहदेव और युधिष्ठिर हैं. सहदेव बोलता है कि मुझे आज चाइनीज फूड खाना है, ठीक है, और युधिष्ठिर को भी चाइनीज फूड खाना है, बट दे आर नॉट अवेयर कि किसको क्या खाना है, एंड देयरफॉर दे हैव गॉन फॉर अ नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट. दिस इज कॉल्ड फॉल्स कॉन्फ्लिक्ट, जहां आपको पता नहीं है क्या मुद्दा है लेकिन फिर भी आप विवाद में चले जाते हैं. देन वी हैव ट्रू कॉन्फ्लिक्ट. नाउ इन दिस कैटेगरी और इन दिस कॉन्फ्लिक्ट बोथ द पार्टीज नो कि किसको क्या चाहिए, what are their choices, what are their interests, what are their goals, but still there is a disagreement.
वहां पे विवाद है, दिस इज कॉल्ड ट्रू कॉन्फ्लिक्ट. नाउ दिस इज अ टर्म कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन. तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है, it ends up, it becomes so grave, it leads to violence and finally to war. तो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने से हमें रोकना है, so we need to understand how it can be done. The first inquiry is that we need to find out what the dispute is. अगर because as I told you, conflict क्या होता है कि manifest नहीं किया जाता है, दिखता नहीं है. तो अगर आप उसको manifestation stage में ले आते हैं, so there will be possibility that you can resolve that. So therefore we need to understand that how we need to find out the ways and how a dispute can be resolved. For that, the most important part is communication. So now when we talk about communication, we have non-verbal communication, verbal communication, para-language, silence. ये सारे elements हैं communication के, और इन सब से communicate होता है. For example, आप लोग सारे गाने सुनते हैं. कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता. If there is a person who do not know Punjabi, but वो पंजाबी गाने सुनता है. A person knows only Hindi, but वो English गाने भी सुनता है. So what is important is not the words or the lyrics of that song, but how that tune, the background, the picture affects you. It matters. गाने आपको समझ में नहीं भी आते हैं, लेकिन आपको ट्यून समझ में आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, आपको उसकी बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, आपको उसका पिक्चराइजेशन अच्छा लग रहा है. सो दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जब आप कम्युनिकेट करते हैं विदाउट यूजिंग और विदाउट यूजिंग द वर्ड्स और विदाउट टॉकिंग, दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता क्या है? इट कॉम्प्लीमेंट्स. अगर आप किसी को बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पॉइंटिंग समवर्ड्स कि भाई वो जगह उधर है, नाउ दिस पॉइंटिंग इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. आपने बोला कि वो जगह उधर है, तो ये आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इट्स रेगुलेट्स. आप बताते हैं कि भाई सारे एक लाइन में आ जाइए, सब इधर खड़े हो जाइए, दिस इज रेगुलेशन. इट सब्स्टिट्यूट्स. आप कभी कुछ नहीं बोलते हैं, बट बस पॉइंट करते हैं, दिस इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. और कभी आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, आप इशारे कहीं और करते हैं लेकिन आप बोलना कुछ और चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन. So this is first first way of communication, that is non-verbal communication. It is used mostly by us in day-to-day life. हम हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन से बात नहीं करते हैं, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं. नाउ देयर वाज अ स्टोरी, आप लोगों को स्टोरी के बारे में पता होगा. दिस स्टोरी इज रिगार्डिंग द स्वयंवर ऑफ द्रौपदी, who was also called as यज्ञसेनी. नाउ इन द्रौपदी में क्या हुआ? King Draupad organized Swayamvar to choose the most suitable archer who was worthy of marrying his daughter. तो उन्होंने एक कंपटीशन रखा, बोला कि भाई जो इस कंपटीशन में जीतेगा वो मेरी डॉटर से शादी करेगा. नाउ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए, तो इसमें 5 पांडवास जो हमारे नकुल, अर्जुन, युधिष्ठिर, सहदेव, भीम, ये भी आए. इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, ऑब्वियसली इन डिस्गाइज. सो द यू नो जो शर्त थी वो ये थी कि आपको क्या करना है. द कॉम्पिटिटर हैज टू स्टिंग अ बो एंड शूट अ फिश दैट वाज रोटेटिंग ऑन अ व्हील व्हिच वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द हॉल सीलिंग व्हाइल स्टेयरिंग एट इट्स रिफ्लेक्शन इन एन ऑयल पूल. तो क्या करना है आपको? आपको उस मछली की आंख को भेदना है, लेकिन वो जो मछली है वो हॉल की सीलिंग में रखी गई है और एक रोटेटिंग व्हील में उसको रखा गया है, और आपको उसको उसकी आंख को मारना है, बट डायरेक्ट देख के नहीं, एक जो वहां पे बोल रखा है ऑयल का उसमें देख के. Now this was the competition. So only one person, that is Arjun, was able to have the right target. एक वही था जिसने उस मछली की आंख को भेद पाया. And finally he won the competition. अब था क्या? Now, when these 5 Pandavas were leaving from that place and they were heading towards their house, तो सबसे पहले अंदर जाता है अर्जुन. वो बोलता है, look what I won at the competition, mother. तो जब माँ को वो बोलता है कि आप देखिए मैंने क्या क्या जीत के लाया हूँ, तो मदर बिना देखे हुए, मतलब उनको बिना देख के वो ये बोलती हैं,
whatever it is, distribute it equally with your brothers. उन्होंने कुछ नहीं सुना अच्छे से, उन्होंने पीछे नहीं मुड़ा, उन्होंने नहीं देखा, and because at that time whatever has been said by your parents, you have to follow it. तो उस वक्त ये करना था, तो अर्जुन ने बोला ठीक है. अब हुआ क्या कॉन्सिक्वेंस? द्रौपदी का जो प्यार था अर्जुन, उनको नहीं मिल पाया, एंड देयर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री. ना चाहते हुए भी उन्हें ये करना पड़ा, भाइयों को भी शेयर करना पड़ा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. तो अगर वहां पे प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया जाता, प्रॉपर वार्तालाप किया जाता, तो शायद उनकी मदर कभी उनसे ये बोलती नहीं करने को. सो दिस इज व्हाई we do not only require non-verbal communication but also an effective communication. तो आप जब बात करते हैं, वो बात सही से करी गई है, वो सही से कम्युनिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा. Ineffective or absent communication is one of the main sources of conflict. Sometimes we say conflict हो गया है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि miscommunication था. Now there is another term called paralanguage. Paralanguage का मतलब ये होता है, sometimes we do not say or speak anything, but we assume that something has been said. कुछ conversation हुआ है. For example, अगर मैं इस लाइन को पढ़ने को आपको बोलूं, it says, I hit the man with a stick. There's another statement. It says, I hit the man with a stick. Now, if you see these two statements, you will find जो पहला statement बोलता है, उसका मतलब है I used a stick to hit the man. जो दूसरा statement है, उसका मतलब है I hit the man who was holding a stick. But हमने कैसे गैदर किया इस बात को? हमने देखा कि कहाँ पे स्ट्रेस किया गया. जब मैंने बोला आई हिट द मैन, फिर मैं पॉज लिया विद अ स्टिक. सेकंड टाइम मैंने बोला आई हिट द मैन विद अ स्टिक. सो समटाइम्स जो आप पॉज लेते हैं, जो वर्ड्स में स्ट्रेस डालते हैं, जो आपकी टोन होती है, आपकी पिच होती है, वो भी कुछ कम्युनिकेट करती है, एंड दैट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज क्या होते हैं? कंपोनेंट्स, द फर्स्ट वन इज काइनेसिक्स. इसका मतलब होता है कि बॉडी लैंग्वेज से क्या आपको समझ में आ रहा है, दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से आप क्या इन्फेरेंस निकाल पाते हैं. प्रोक्सेमिक्स इज डिस्टेंस बिटवीन दी स्पीकर एंड लिसनर. अगर दूर से हैं तो आप जोर से बोलते हैं, पास है तो आप धीमा बोलते हैं. दिस इज प्रोक्सेमिक्स. हैप्टिक्स इज जब आप टच करके बात करते हैं, हाथ मिला के बात करते हैं. फिजिकल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आप शांत रहेंगे. आप कहीं स्टेडियम में बैठे हैं तो आपको चिल्ला के बात करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पे हल्ला हो रहा होगा. तो दिस इज फिजिकल एनवायरनमेंट आल्सो अफेक्ट्स पैरा लैंग्वेज. देन वी हैव पैरावर्बल फीचर्स. इसमें आपका टोन, वेलोसिटी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, पॉजेस, ये सारा कुछ आ जाता है. एंड फाइनली इज द ऑरा. समटाइम्स यू वुड हैव लिसन्ड टू पीपल सेइंग दैट आई डू नॉट लाइक दैट पर्सन बिकॉज मुझे अच्छी वाइब नहीं आती है उससे, मुझे अच्छा ऑरा नहीं मिलता है उनसे. सो दिस इज ऑरा दैट वी ऑल कैरी. ना चाह के भी हम अपने साथ एक ऑरा लेके चलते हैं. तो हम हमेशा बोलते हैं कि इसकी वाइब्स और मेरी वाइब्स मिलती हैं, तो हम इसलिए कम्युनिकेट कर पाते हैं. सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद अ पर्सन थ्रू कम्युनिकेशन. देन इज द साइलेंस. साइलेंस में क्या होता है? साइलेंस ऑल्सो हैज एबिलिटी टू कम्युनिकेट. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को अगर उसके पेरेंट्स उसके लिए खिलौना नहीं लेके आते हैं तो वो चुप बैठ जाता है, ना खाना खाता है, अपने रूम में चले जाता है. Now what he is showing you is उसे गुस्सा है, अपसेट है. एक आपको वो रिवॉल्ट की बात भी कर रहा है कि भाई ये तो मेरे साथ, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे खिलौना नहीं मिलेगा. सो इवन इफ ही इज साइलेंट, you know that he's communicating his emotions. That is called communication through silence. उसका तरीका ये है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पेरेंट्स को हर्ट होगा और शायद वो मेरी बात समझेंगे. सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ साइलेंस टू कम्युनिकेट. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज सेंडर. जैसे मैं आज यहाँ से बात कर रहा हूँ तो मैं एक सेंडर हूँ. जो भी इस वीडियो को देखेगा वो रिसीवर है. दैट इज द सेकंड कंपोनेंट. जो मैं बोल रहा हूँ वो एक मैसेज है. जो मैं माध्यम यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी वीडियो यूज कर रहा हूँ, दैट इज चैनल जिससे हम अपना मैसेज को भेजते हैं. नॉइज
अगर आपके पास कोई आसपास रहता है तो उसकी नॉइज आपको सुनाई देती है। अब दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, एनकोडिंग और डिकोडिंग। अब ये होता क्या है? नाउ वी ऑल हैव फाइव सेंसेस, हमें सबको पता है। वी कैन स्पीक, वी कैन लिसन, वी कैन सी, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। वी कैन टच, वी कैन फील द टच, तो सारा कुछ होता है। नाउ इफ आई एम स्पीकिंग, आई एम यूजिंग ओनली वन सेंस। मैं एक सेंस ऑर्गन को यूज करके आपसे बात कर रहा हूं। आप सुन रहे हैं, आप भी एक सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हैं। लेकिन समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी से, अपने दोस्त को कुछ अच्छी, मुझे उसको, बिकॉज उससे मुझे अफेक्शन है, तो मुझे उसको अच्छे खाना खिलाने जाना है। सो आई एम गोइंग टू अ गुड रेस्टोरेंट जहाँ खाना अच्छा है। सो यहाँ पे क्या, कौन सा मैं सेंस ऑर्गन यूज कर रहा हूँ? वो है मेरा टेस्ट, स्मेल। तो मैं ये सारा यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई शर्ट पसंद आती है, मैं उसको लेने जाता हूँ, मुझे कलर पसंद आया तो मैंने अपनी आंखें यूज करी। सो वेन एवर देर इज अ मैसेज, उसको पहले आपको एनकोड करना पड़ता है। आप या तो उसको बोल के बताते हैं, या आपको कुछ अच्छा गिफ्ट कर देते हैं, किसी को बुके गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक वे है कम्युनिकेट करने का। आप किसी को खाना खिलाने ले जा रहे हैं, अच्छा खाना खिलाने ले जा रहे हैं, वो भी एक वे है मैसेज को कम्युनिकेट करने का। दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग। डिकोडिंग इसका ठीक उल्टा है। मैंने किसी को शर्ट गिफ्ट करी, मैंने शर्ट इसलिए गिफ्ट करी क्योंकि मुझे कलर पसंद आया, मैंने अपनी आंखें यूज करी। दूसरे को शर्ट इसलिए पसंद आई क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी। दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। सो एवरी पर्सन विल यूज डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स टू डिकोड कि मैं एक मैसेज कैसे आया। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप मैसेज को ऐसे भेजें कि वो सारी डिकोडिंग एनकोडिंग प्रॉपर वे से हो। एंड फाइनली वी हैव फीडबैक, बिकॉज इन टूडेज कॉन्वर्सेशन देयर इज नो कॉन्वर्सेशन एट ऑल, बिकॉज मैं आपसे जो बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन सुन रहा है या कौन नहीं सुन रहा है। दिस इज कॉल्ड the lack of feedback. But sometimes whenever you are communicating, you need to also see कि feedback क्या आ रहा है। क्या आप मेरी बात सुन पाए? क्या मैं audible था? That is called feedback. क्या आपको बात समझ में नहीं आई? These are all feedback. So therefore, these are the components of communication. Now we also have barriers. कभी कभी language barriers होता है। I am speaking English, I am speaking Hindi, but I do not know that whether the audience knows English, knows Hindi, is a language barrier. कभी कभी ये भी होता है that I'm speaking English, but my few words will not be known to some other person because that person do not know those words. This is language barrier. Then we have psychological barriers. Psychological barriers is because sometimes a person is so nervous, he's afraid, तो बात नहीं कर पाता है. That is called psychological barrier. Then we have physiological barriers. For example, अगर मैं बात, मेरे कान में थोड़ा सा hearing problem है, तो मैं सुन नहीं पाऊंगा. That is also a barrier. We have physical barriers. आज हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट मे बी आपके वहां नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, तो ये क्या है? नेटवर्क इश्यू। दैट इज अ फिजिकल बैरियर। एंड फाइनली वी हैव एटीट्यूडनल बैरियर्स। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई इंसान साउथ इंडिया का मेरी बात को सुने। दिस इज बिहेवियर, मेरा परसेप्शन है कि भाई मैं किसी साउथ इंडियन से बात नहीं करूंगा। These are called attitudinal barriers. So we have various barriers in communication. And now the final thing, that is perception in communication. परसेप्शन का मतलब है कि कम्युनिकेशन में आप कैसे परसीव करते हैं चीजों को। द फर्स्ट इज सिलेक्शन। जैसा कि आपने बताया था कोडिंग एंड कोडिंग में, मुझे कोई व्हाइट शर्ट पसंद आती है बिकॉज आई लाइक द कलर व्हाइट। दिस इज माई वे ऑफ सीइंग द थिंग्स। किसी को वही शर्ट पसंद आती है बिकॉज उसने टच करके पसंद किया, उसे लगा क्वालिटी अच्छी है इसलिए मैं लेता हूँ। सो दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन। आप कैसे बातों को लेते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं। देन वी हैव इंटरप्रिटेशन। मैंने कलर देखा, मुझे पसंद आया, मैंने इंटरप्रेट किया कि हाँ अच्छी शर्ट होगी। उन्होंने टच किया, उन्हें पसंद आया कि हाँ ये अच्छी शर्ट होगी। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। देन वी हैव फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स मतलब कि आप दिन में गए थे किसी शर्ट को खरीदने, रात को खरीदने गए थे, तो उससे भी इफेक्ट हो जाएगा आपका शर्ट का चॉइस। सिमिलर वे कम्युनिकेशन ऑल्सो अफेक्टेड। आप किसी से बात कर रहे हैं लाइब्रेरी में, तो आपको आराम से धीमा बात करना है। कहीं क्राउडेड प्लेस में बात कर रहे हैं तो आपको सुनाई नहीं देगा क्या चल रहा है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। देन वी हैव साइकोलॉजिकल बैरियर्स। हम किसी के बारे में सोचते हैं कि ये ऐसा इंसान है, ये गुजराती है तो ये बिजनेसमैन है। दीज आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल
फैक्टर्स, हमने पहले से प्री कंसीव नोशंस बना रखे हैं। यहाँ के लोग बहुत तेजी से इंग्लिश बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता, जैसे अगेन प्री कंसीव्ड नोशंस। देन वी हैव कल्चरल फैक्टर्स। नॉर्थ इंडिया को लगेगा नहीं कि साउथ इंडियन से बात कैसे करें, किसी को लगता है कि साउथ इंडिया बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, तो दिस आर ऑल कल्चरल फैक्टर्स। बिकॉज मेरे वहां, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सी, if I would have been belong to a society, from a western country, in a western country, मैं बोलूंगा कि भाई सब नॉर्मल है, आप जाइए रात को घूमिए इधर उधर जाइए। बट कहीं पे बोला गया कि आपको इस टाइम पे घर पे आना है, बिकॉज कल्चरल सोसाइटी क्या बोलेगी, आपको टाइमली आना है। दिस इज और कल्चरल फैक्टर्स। देन वी हैव स्टीरियोटाइपिंग, जैसे हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का ही, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का ही ये एक पार्ट है, जहां हम प्री कंसीव नोशंस को इस हद तक समझते हैं कि हम कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, ऑल साउथ इंडियंस आर मद्रासीज, हम देखते हैं कि भाई सारे साउथ इंडियन मद्रासी होते हैं। ऑल गुजरातीज आर गुड बिजनेसमैन, ये हमारी स्टीरियोटाइपिंग है। हमें कोई हट्टा कट्टा इंसान दिखता है तो हमें लगा ये बहुत हट्टा कट्टा, इससे बात नहीं करना, इससे झगड़ना नहीं है। दीज आर ऑल स्टीरियोटाइपिंग। अब रियलिटी और परसेप्शन में डिफरेंस बनाना बहुत इजी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा। फॉर दैट वी विल टेक द हेल्प ऑफ सिलोजिज्म. Syllogism is the science of arriving at accurate conclusions based on advanced information. For example, if I say A is equal to B, then means and B is equal to C, and finally that will lead to A is equal to C. तो ये हमने पढ़ा है बचपन में कि अगर A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो इसका मतलब है A C के इक्वल है. Now this is the first class exercise which we will do. So if I read first statement, वो लिखा गया है every Indian is human. सेकंड में लिखा है every human will make mistake sometime. तो अगर मैं इसका A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी और A इक्वल टू सी करके देखूं तो क्या आएगा? every Indian will make mistake sometime. अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने जो कंक्लूजन था उसको डिड्यूस किया स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से, एंड दीज बोथ फैक्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स। पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड फाइनली अगर आपने स्टेटमेंट को देख के कंक्लूड किया है, आपने अपना बायसनेस नहीं लगाया है, आपने अपना परसेप्शन नहीं लगाया है, तो आपको रिजल्ट सही मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप इसमें सेल्फ बायसनेस लगा देते हैं तो आपका रिजल्ट बदल जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज सम पारसीज आर लॉयर्स, स्टेटमेंट 2 इज सम लॉयर्स आर गुड। और अगर आप बिना स्टेटमेंट को देखे, अगर बिना स्टेटमेंट को देख के या बिना उसको पढ़ के आप अपना कंक्लूजन खुद से बना लें, अगर अपने परसेप्शंस डाल दें उसमें, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं ऑल पारसी लॉयर्स आर गुड, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन established facts. तो important है that whenever you are resolving a dispute, whenever you are communicating to a party, okay, to be the party, then you have to see that whether the facts are clear to you, whether the facts to which you are concerned with are true in nature or not. Now this third example, पहला स्टेटमेंट बोलता है all Christian are lawyers, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है some lawyers are good. जो इसका पहला स्टेटमेंट है ऑल क्रिश्चियंस आर लॉयर्स, ये खुद में सही नहीं है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो सकता है। देयर में भी पॉसिबिलिटी कि सारे लॉयर्स सही नहीं हो, बट कुछ लॉयर्स गुड, दे आर गुड। बट पहला स्टेटमेंट बोलता है ऑल क्रिश्चियन आर लॉयर्स, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सारे क्रिश्चियन लॉयर्स नहीं हो सकते। तो इसमें क्या होगा, आपका कंक्लूजन भी गलत आ जाएगा। ऑल क्रिश्चियन आर गुड लॉयर्स, ये आपका कंक्लूजन आ जाएगा, बिकॉज आपने ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी सोच के ए इक्वल टू सी कर दिया। तो क्या होता है, आपको मैंने बताया कि आपको जो भी कंक्लूजन बनाना है, इट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन established facts. But the second thing which is important is that it has to be dependent on the statements which are verified. अगर statements verified नहीं है तो आपका conclusion भी गलत हो जाएगा। So आपको पहला perception को include involve नहीं करना है, दूसरा आपको facts को देखना है, थर्ड आपको वेरीफाई भी करना है कि फैक्ट्स जो आपके पास हैं वो सही हैं भी या नहीं। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड्स प्रिपरेशन, प्रॉपर्ली फैक्ट्स को देखिए, समझिए,
क्रिस्टल क्लियर रहिए, जो भी आप बात करते हैं उन उन वर्ड्स को यूज करिए जो वर्ड्स की दूसरी मीनिंग नहीं हो सकती, वो एक ही वर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, तो सबके लिए मतलब यही होना चाहिए कि भाई ये जो जगह है बहुत सुंदर है। अगर वो कुछ और निकाल सकते हो, अपने वर्ड्स चेंज करिए। फ्लेक्सिबिलिटी, आप हमेशा किसी पोजीशन को या सिचुएशन को ऐसे मत देखिए कि वो यूनिफॉर्म आपको रूल लगाना है, यूनिफॉर्म फॉर्मूला इजाद करना है। एवरी सिचुएशन विल बी डिफरेंट। कभी आप मैट्रिमोनियल केस को देख रहे होंगे, कभी आप लैंड डिस्प्यूट को देख रहे होंगे, कभी आप ट्राइबल डिस्प्यूट को देख रहे होंगे। तो हमेशा डिस्प्यूट आपका बदलता रहता है, उस वक्त आपको भी कम्युनिकेशन तरीका बदलना पड़ेगा। फोर्थ इज एस्टेब्लिश ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना है। पार्टी तभी आपसे बात करेगी, तभी आपके सामने मीडिएट करना चाहेगी जब आप ट्रस्ट क्रिएट करेंगे। फोर्थ इज फिफ्थ इज एम्पैथाइज नॉट सिंपैथाइज। समटाइम्स वी से कि भाई अच्छा ये आपके साथ ये हुआ, बहुत बुरा हुआ, दिस इज ओनली सिंपैथी। मुझे दुख है कि आपके साथ बुरा हुआ, ये सिर्फ सिंपैथी है। इसमें लोग कम्युनिकेट करेंगे लेकिन उतने हद तक नहीं करेंगे। बट अगर आप बोलते हैं कि हाँ मुझे भी कोरोना हुआ था, फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कितना दिक्कत होता है कोरोना के टाइम पे, आप सो नहीं पाते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं, यू आर एम्फेथाइजिंग दैट पर्सन। सो you need to empathize, not sympathize. Then we have consensus adhering. That means meeting of minds. जब भी आप रिजोल्यूशन करना चाहें, you need to have a effective communication and it can be done through meeting of minds. आप दोनों की बातों को समझिए. Then we have focus and attention. अब जब भी आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में बैठे हैं या उसमें खुद करना चाह रहे हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा हर एक छोटी छोटी बातों का। Then is rephrasing. When you are communicating or when you are trying to resolve a dispute, तो कभी भी डायरेक्टली बात मत करिए। आप किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, डोंट से आई बिलीव व्हाट यू मीन टू से वॉज। इंस्टेड यू कैन से यस आई एम हेयरिंग यू, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप बताइए प्लीज, आप अपने बारे में सारा बताइए। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं सब जानता हूँ, तो भाई आप जब सब जानते हैं तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। देन वी हैव ऑस्पिशियस बिगिनिंग, दैट इज कॉल्ड शुभ आरंभ। हम भारत में यूज करते हैं इस वर्ड को। जब भी आप रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट करना चाह रहे हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, सो यू नीड टू रिमाइंड दैट पर्सन ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स। आप सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स को मत लेके आइए। आप उनको बताइए दैट जब आप साथ रहते थे कैसा फील होता था। आप उनको बताइए कि कैसा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू हैव दो फैक्ट्स। अगर पास फैक्ट्स हैं तो आप ये बात कर पाएंगे डायरेक्ट। फिर आप धीरे धीरे आके फिर आप प्रॉब्लम पे आइए। सो पहले आप सीधे प्रॉब्लम में नहीं जंप करना है। यू नीड टू फाइंड आउट दैट व्हेन यू आर टुगेदर हाउ वर द थिंग्स। सो नीड टू टेल दैट पर्सन कि आप रिमाइंड करिए उन बातों का जब आप साथ में रहते थे, अच्छे से रहते थे। देन यू कैन कम टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। So we have another exercise, last exercise, which shows that what is another component of good and effective communication. So that is we take a breath. हम हमें हर दिन सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। So अगर for example we all are humans and we require only oxygen to live in, right? We do not require carbon dioxide, but still we exhale it. So is it possible that we only inhale without exhaling? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 30 सेकेंड्स के लिए सिर्फ ऑक्सीजन लीजिए लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ना है आपको, विल इट मेक एनी सेंस? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ऑक्सीजन, inhaling of oxygen is so important and is as important as is the exhaling of carbon dioxide. तभी हमारा लाइफ चलता है। एंड सेम गोज विथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे, सुनेंगे नहीं, तो अगेन देर विल बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस इज द लास्ट component that is called learn more, speak less, or speak also, listen also. सुनिए भी और बोलिए भी। So finally I'm coming to the conclusion. तो हमने ये समझा अभी तक that dispute may happen anytime with anyone. So whether his person is clever or ignorant, careful or negligent, कुछ भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, he will fall in disagreement and eventually he will end up in having problems.
And for that, what we require is the communication, a proper communication, efficient communication. तो वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप पेन समझते हैं, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द सरफेस जिस पे पेन चलेगी. So both are important, verbal as well as non-verbal. And in order to have a highly culture specific and play a crucial role in human interaction, तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए? जेस्चर्स का, कि हम कैसे बात करते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हमें सब कुछ आई कांटेक्ट है या नहीं है. So these things has to be seen while we are communicating. So if you need to improvise your communication skills, आप सबको ध्यान देना पड़ेगा. And for a dispute resolution process, we need to avoid having stereotypical ideas. हमें बायसनेस को छोड़ के कम्युनिकेट करना है. अदरवाइज वी हैव टू कम्युनिकेट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. जो फैक्ट्स हैं और जो वेरीफाइड फैक्ट्स हैं उसको लेके काम करना है. एंड नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट हेल्प अस अंडरस्टैंड द अदर पार्टीज रिक्वायरमेंट. अगर आप इससे बात ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं है कि मुद्दा है क्या, विवाद है क्यों. सो वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द वे ऑफ द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. Then we can go with for negotiation, mediation, conciliation, जो हम बाद की क्लास में देखेंगे कि mediation कैसे होता है, क्या होता है, and how it is done. So the only common thread which connects mediation, negotiation, arbitration, or any other form of ADR or even litigation is to have an effective communication. So this was all about today. Thank you so much, and I hope that this concept, this role of communication is clear to everyone, that how crucial it is to understand the concepts of communication और कैसे यूज करना है. अगर आप यूज करना नहीं जानते हैं तो फिर it is very difficult to have a proper dispute resolution mechanism. So thank you everyone, and now we'll meet for the next time. I will see you for the next time, that when we will have a discussion on other forms of ADR. अभी हमने सिर्फ समझा है कि ADR के लिए क्या important है. Now in next class we will see that what are the various forms of ADR और कैसे काम करते हैं.